So in this lecture we are going to see is is it possible for us to import a GIF file in our web document or not? That's what we are going to see first. So how can we import this file in our web document? We need to go on this code first, come on this code first, and here inside these double inverted commas we need to define the name of this file like this. So this is the file which we want to import on our web document. Let's save the changes and see what are we going to get as an output here on the web page. So this is the file that you're seeing over here. Okay, the size of the file is very small. In order to scale it up, we can play with this height and width properties. So let's have 50% for height, and width also let's have 50%. So this is how you can. Excuse me, sir. Yes, who's this? Sir, I am Anushka. Sir, in last class we discussed कि अगर HTML document and file दोनों same folder में होंगे तभी we can access by writing the name. और अगर वो हमारे desktop पे हैं तो हमें full location लिखनी होगी. नहीं बेटा. In the last lecture we learned that if suppose the location of your HTML code and the image that you're trying to access on your HTML document, if the location are different, then we need to define the complete address of the image inside that web document, inside the HTML code. ये चीज हमने पढ़ाई, ये चीज मैंने पढ़ाई थी. अभी क्या है, they both are present on the desktop. You can see this image also is on the desktop, and this file that we have created, where is that file? What is the name of this file? It is image. ये जो file है, this is also there on the desktop. This is a file and this is an image. So both are present on the same location. They are on the desktop. So we can access this image in this web document by writing the complete name of this image here for this source part. हम लोग directly इसको access कर सकते हैं because they both are present in the same folder. कह सकते हो आप. Desktop का भी एक folder होता है C drive में. ठीक है, तो ये अभी सेम फोल्डर में ही प्रेजेंट है, सेम लोकेशन. विच ड्राइव? सी ड्राइव में मिल जाएगा आपको. ठीक है, जिस भी ड्राइव में आपकी विंडोज इंस्टॉल्ड है ना, उसमें एक फोल्डर होगा डेस्कटॉप, वो उसमें आपको ये वाली फाइल मिल जाएंगी. डिड यू गॉट दिस थिंग? क्योंकि लोकेशन दोनों का सेम है, इमेज का भी लोकेशन वही है एंड द कोड इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप. सो इट विल बी पॉसिबल फॉर अस. It is possible for us to access the image directly by using the complete name of the image here in the source part of this img tag. Now, if you want to see it, right now it is on the left side of the screen. If you want to see it on the right side of the screen, what is the attribute that you can use for the same? Can anyone tell me? What is the attribute that we can use for making it float on the right hand side of the screen? Float, that is absolutely correct. Float is an attribute, and let's pass a value. Let's pass this right as a value for this float attribute. Let's see what is going to happen to this image. So it is now on the right side of this window. Did you all notice the changes? Yes, sir. Now if suppose you want to see it, just a second. सर लेकिन लेफ्ट साइड पे इमेज छोटी थी, यहाँ पे आके बड़ी हो गई है. Why? Because you know, earlier there was a space between right and the semicolon, so that is the reason. ये वाली जो एट्रीब्यूट है ना बेटा, ये वाली जो प्रॉपर्टीज है, इनकी जो वैल्यूज है, इन्होंने काम करना बंद कर दिया. जस्ट बिकॉज हम लोगों ने एक स्पेस छोड़ दिया था राइट और सेमीकोलन के बीच. इफ यू विल एलिमिनेट दिस स्पेस, नाउ जस्ट सेव द चेंज एंड सी व्हाट आर यू गोइंग टू सी हियर ऑन दिस वेब पेज. सो यू विल बी एबल टू सी द ओरिजिनल साइज ऑफ दिस इमेज, और यू कैन सी द चेंज साइज ऑफ दिस इमेज. ठीक है, अगर आप कोड में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दोगे ना यहाँ पे सेमीकोलन और इसके बीच में,
स्पेस डाल दोगे तो होगा क्या, आपको ओरिजिनल साइज दिखने लग जाएगा। ठीक है, नाउ दीज प्रॉपर्टीज हाइट एंड विड्थ दे विल नॉट वर्क। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे। सिमिलरली मैं एक चीज और बताता हूं, अगर आपने while defining a tag, if suppose you leave a space in between this greater than sign and this img tag, क्या हो सकता है देखते हैं। Let's save the changes and see whether we'll be able to access the image on this web page or not. Are we able to access the image now? क्या image accessible है? Why it is not accessible? क्योंकि अभी ये tag ना, अभी ये tag रहा ही नहीं। क्योंकि टैग जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं, we need to make sure that we don't leave any space between this sign and this name of the tag. हम लोगों को कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना होता है इसके बीच में, there should be no space. अब इतनी छोटी छोटी बातें ना आपको जब ही समझ में आएंगी when you will try it on your own, when you will try to use these codes on your own on your laptop. प्रैक्टिकली जब तक नहीं करोगे बेटा ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। That is the reason I keep on telling you guys in every class that until and unless you will do them practically, you will not be able to understand the tags. अब क्या है, अगर आपको इसको सेंटर में लाना है, लेफ्ट राइट तो हम लोग कर सकते हैं इस फ्लोट वेरिएबल से। ये मैंने लेफ्ट में कर दी इसे। नाउ इट विल बी on the left hand side, it will get reflected on the left hand side. Now if you want to bring it in the center, how can you do that? There is a trick. vertical line. वर्टिकल लाइन कहां पे डिफाइन करूं? वर्टिकल लाइन बताओ कैसे यूज करें वर्टिकल लाइन? कौन बताएगा वर्टिकल लाइन को कैसे यूज करें? पहले तो we have to write style. चलो let's do one thing. Let's remove this thing from here. सर इमेज चली नहीं जाएगी? इमेज क्यों चली जाएगी बेटा? सर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, नॉर्मल साइज। बट दिस इज अ टैग व्हिच वी आर यूजिंग फॉर एक्सेसिंग द इमेज। वो जो प्रॉपर्टीज थी, वो जो एट्रीब्यूट्स थे, वी वर यूजिंग देम फॉर स्टाइलिंग द इमेज। हम लोग इमेज को स्टाइल करने के लिए वो यूज कर रहे थे। हाइट, विड्थ जो भी हम लोगों ने यूज करी, वो हाइट और विड्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज करी थी। अभी दिस इज द ओरिजिनल साइज ऑफ दिस इमेज। द इमेज दैट यू आर सीइंग ना, ये ओरिजिनल इमेज है। ओरिजिनली में इतनी विड्थ है इसकी और इतनी हाइट है। नाउ इफ यू वांट टू स्केल इट डाउन, आप लोग हाइट और विड्थ का यूज कर लो तो आपकी स्केल डाउन हो जाएगी। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी ब्रिंग इट इन द सेंटर। नाउ you guys are saying that we can use vertical align attribute, right? So let's make use of this vertical align attribute and see what is going to happen. कुछ हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ ना? चलो सेंटर की जगह हम लोग मिडिल में लाते हैं। इसको मिडिल में लेके जाते, अब भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मिडिल में ले गए, जब भी कुछ नहीं हुआ। चलो इसको स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू गेट। अब भी कुछ नहीं हुआ बेटा। मिडिल को चेंज कर देते हैं सेंटर से। इसको लेट्स रिप्लेस इट विद सेंटर। अब भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आती है बेटा कोडिंग। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे ना, हर चीज को ट्राई नहीं करके देखोगे, तभी कोडिंग नहीं आ सकती आप लोगों को। Let's define it like a CSS property. Let's define it like a CSS property. ठीक है, style equal to type। फिर हम लोग क्या करते हैं, for defining any attribute, for defining the CSS property, we need to import the CSS files first. So we can do it like this. अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, IMG को स्टाइल करके देखते हैं कैसे। वर्टिकल अलाइन, चलो सेंटर पास करके देखते हैं पहले। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू गेट एज एन आउटपुट। कुछ भी नहीं हुआ। मिडिल पास करके देखते हैं, हुआ कुछ? कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग मिडिल में कैसे लाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसकी।
वर्टिकल अलाइन देखना आप लोग कैसे कर सकते हो वर्टिकल अलाइन, ये आपका होमवर्क है। पिछली बार भी दिया था मैंने, आज भी दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की। अभी अगर मैं इस चीज को, आप लोग देख रहे हैं ये जो इमेज टैग है, वी हैव डिफाइंड दिस थिंग इनसाइड दिस बॉडी पार्ट, राइट। हम लोगों ने बॉडी पार्ट के अंदर ये इमेज टैग को डिफाइन कर रखा है। अब अगर मैं यहां पर, if I will give a style to my body using this for aligning its text, if I'll write down this thing text align, if I'll make use of this text align and I'll pass a value, I'll pass this value for this text align property. Now what has happened? सर हो गया। सेंटर में आ हाँ, गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने बॉडी का जो टेक्स्ट अलाइन था वो सेंटर पे कर दी। वर्टिकल अलाइन ठीक है। नहीं होगा, वर्टिकल अलाइन से नहीं हो सकता वो सेंटर में। Who is this? Who has asked this question? First of all, tell me your name, dear. Beta, first of all, tell me your name. Sir, I am Anushka. नाम अनुष्का। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन आपने इस बारी तो आपने पूछा है बेटा, इस बार तो पकड़ में आ गए आप, इस बारी आपने पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन। तो करना क्या है, वर्टिकल अलाइन को ना आप लोगों को खुद टेस्ट करके देखना है। इंटरनेट पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, लेकिन देखो वर्टिकल अलाइन जब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आप वर्टिकल अलाइन से इसको सेंटर में मिडिल में ला सकते हो, तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ना लाने का। अब वो जो तरीका है ना, you guys have to find out the trick for me. I am not going to tell you everything in the online classes. ठीक है, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी या इंपॉर्टेंट होगी या जो मैं जिसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, that is the only thing that I those are the things which I am going to discuss in the online classes, चाहे वो आपकी बुक की हो चाहे नहीं हो। ठीक है, ये जो वर्टिकल अलाइन का कंसेप्ट है ये मुझे आप फाइंड आउट करके दो। ठीक है अनुष्का? अनुष्का, I want to hear a yes from you, beta. Yes, sir. Just a second. Anushka, I want to hear a yes from you, beta. Yes, sir. ठीक है, अब बॉडी के अंदर, अब इसमें पता है दिक्कत क्या आएगी? इसमें दिक्कत ये आएगी कि whatever you will be defining inside the body part of this HTML document, automatically it is going to come in the center. Let's define a text. अगर मैं ये text define करूं, this is the first image, अगर मैं ये डिफाइन करता हूं टेक्स्ट, ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इन द एज अ आउटपुट। अब आपको दिख रहा है यहां पे ये भी एक सेकेंड, आर यू गाइस एबल टू सी दिस टेक्स्ट ओवर हियर? दिख रहा है ये? Yes, sir. नाउ आई डोंट वांट टू सी इट गेटिंग रिफ्लेक्टेड ओवर हियर इन द सेंटर। मुझे ये सेंटर में नहीं देखना, लेकिन अब बॉडी को क्योंकि मैंने स्टाइल इस तरीके से कर रखा है कि whatever I will be defining inside the body, it will automatically come in the center. तो अब मैं इस चीज को एलिमिनेट कैसे कर सकता हूं? Now what I will do, instead of defining this text align property for this body tag, हम लोग ना इमेज को एक किसी और टैग में बंद कर लेते। Let's make use of this division tag. ठीक है, डिवीजन एक तरीके से रो होती है HTML में ना, डिवीजन एक रो होती है, तो हम लोगों ने डिवीजन टैग में इसे एनक्लोज कर दिया। अब मैं बॉडी टैग को बॉडी टैग के लिए टेक्स्ट अलाइन नहीं डिफाइन करता, मैं ये काम ना डिवीजन टैग के लिए करता हूं। लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू गेट एज एन आउटपुट ऑन दिस वेब ब्राउजर। डिड यू नोटिस द चेंजेस? सर वो उधर गया, इमेज इधर है। वो उधर क्यों गया बेटा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट बॉडी में whatever you will define, it will get reflected on the left side of the window. It will never get reflected on the center until and unless you pass center as a value for the text align property of body tag. ठीक है, तो इस तरीके से ना आप इन एट्रीब्यूट से खेल सकते हो, लेकिन बेटा खेलोगे तो जब खेलना आएगा। ठीक है,
प्रैक्टिकली करके देख लो इन चीजों को. एक्चुअली इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट. HTML is going to help you a lot if you really want to learn coding. और अब मुझे एक लास्ट में चीज बता